बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, एंड लिसिस मीन टू डिकम्पोज और ब्रेक डाउन or to decompose. So it is a process by which a substance it is decomposed into its components by passing an electric current through its solution form or its molten state. ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस या कंपाउंड जो है वो उसको जिस चीज़ से वो बना होता है उसमें ब्रेकअप कर दिया जाए या डिकम्पोज कर दिया जाए। इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करेंगे उसके सोल्यूशन से या फिर उसकी मोल्टन फॉर्म से। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज दी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस बाय इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सोल्यूशन और मोल्टन फॉर्म इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। सो इट इज़ द डिकम्पोजिशन of a substance into its components by passing an electric current through its solution or molten form. That process is known as electrolysis. As the word itself indicates the meaning, electro means electric current and lysis means to decompose or to break down. So it's the decomposition of substance into its components by passing an electric current through its solution or its molten form. This process is known as electrolysis. Now the topic of today is the electrolysis of water. We are going to study the electrolysis of water. It means that water it is going to be decomposed into its constituent. Constituent means जिससे वो बना हुआ होगा उसकी decomposition हम पढ़ेंगे. Water it is decomposed into its constituent, that is hydrogen and oxygen, by passing an electric current. So come to the topic, electrolysis of water. So in the previous lecture we have studied about the electrolytes and the non-electrolytes. Electrolytes are the substances which allow the electric current to pass through them in the solution form or in the molten state. Those substances are called electrolytes. Then we have read about the strong and the weak electrolytes. The electrolytes which ionizes to some extent or to small extent and do not produce more ions, those substances are called weak electrolyte. So pure water is a very weak electrolyte. Pure water क्या होता है? It is a weak electrolyte. It ionizes to a very small extent into its ions. ठीक है, weak electrolyte क्या होगा? Ionizes to small extent, or we can write it produces less ions. And water जो है ये किस में डिकम्पोज होगा? It is decomposed into H positive ions and OH negative ions. The concentration of the hydrogen ions and the hydroxyl ion in the water is the concentration, their concentration or their amount is 10 raised to power minus 7 moles per decimeter cube. ये क्या होती है? Concentration of hydrogen and
hydroxyl ions. When water is decomposed in H positive ions and OH negative ion, तो उनकी concentration कितनी होती है 10 raised to power -7 moles per decimeter cube. When we add a few drops of sulfuric acid in it, then the conductivity of water is increased. अगर वाटर प्योर वाटर में कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर दिए जाएँ तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सकती है, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है आइंस की, वी कैन इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ दी आइंस बाय एडिंग few drops of sulfuric acid in the water. In this way it produces a little more ions or its conductivity can be increased. So यहाँ पे अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे. वाटर जो है ये किस में डिकम्पोज होता है? वाटर इट इज़ डिकम्पोज्ड इनटू H positive and OH negative ions. इसमें थोड़ी सी हमने इसमें क्या डालने हैं, एसिड डालना है ताकि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो सके. वी हैव टेकन वाटर और ये जो है आइंस जो है इसके एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. 4 water molecules, they break up to produce 4 hydrogen ion and 4 hydroxyl ion. So when electric current is passed through acidified water, वो water जिसमें हमने few drops acid के ऐड किए हैं, तो it break up into the H positive ions and OH negative ion. इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करेंगे एसिडिफाइड वाटर से तो किस में ब्रेकअप होगा? हाइड्रोक्सिल आयन में और हाइड्रोजन आयन्स में. दीज आयन्स दे मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. अब ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें दो आप देखें मेटालिक रॉड्स यूज़ हुई हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लेटिनम. इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स. वो रॉड्स जिनमें मेटल्स की बनी हुई जिसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, मेटल की बनी हुई रॉड्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के साथ. दीज प्लेटिनम की जो बनी हुई रॉड्स हैं, दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वायर विद द बैटरी. सो इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू दैम. सो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स. वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड एनोड, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज़ कॉल्ड कैथोड. कैथोड इट इज़ attached with the negative terminal of the battery, and the anode this rod is attached with the positive terminal of the battery. So इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलेंगे एनोड, और इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलेंगे कैथोड. When electric current is, ये जो apparatus है, this is used for the electrolysis of water. This is an electrolytic cell. Electrolytic cell is the cell in which non-spontaneous chemical reaction takes place with the help of the electric current. इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जो है हम क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा. इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा, और वाटर जो है इट इज़ डिकम्पोज्ड इनटू इट्स आइंस. और आइंस में डिकम्पोज होने के बाद क्या होंगे? ये आइंस जो होंगे, दीज आइंस दे मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? दीज आर द मेटालिक रॉड्स. द रॉड विच इज़ अटैच्ड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज़ कॉल्ड एनोड, एंड द रॉड विच इज़ अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज़ कॉल्ड कैथोड. अब यहाँ पे आप देखें 2 आइंस हैं, पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव. पॉजिटिव आइंस जो हैं दे मूव टूवर्ड्स दी एनोड, और जो नेगेटिव आइंस हैं दे मूव टूवर्ड्स दी कैथोड. जब ये वहाँ पे मूव करेंगे तो क्या होगा? द डिस्चार्ज टेक प्लेस, and then what happen? The oxygen and the hydrogen gas is produced. Oxygen gas is produced at the anode and the hydrogen gas is produced at the cathode. So आप पहले इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इक्वेशन. उसके बाद आपने क्या लिखना है कि जो रिएक्शन when electric current is passed, the respective ions, that is the positively charged ions and the negatively charged ions, they move towards their respective electrodes. Positive ion it will move towards the cathode, and the negative ion they move towards
Positive ion they move towards the cathode and the negative ion they move towards the anode, and at these places anode and cathode discharge take place, and these ions they convert, they produce हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बाय द रिडॉक्स रिएक्शन. एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा. व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. सो अब हम पहले आपने इसकी प्योर वाटर का बताना है कि वो क्या चीज़ है इंट्रोडक्शन में. उसके बाद आपने इसकी वर्किंग बतानी है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या होगा. उसके बाद अब हम इसके रिएक्शंस लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड these ions are produced, and when these ions they move towards the anode and cathode, then what happens? So reaction at anode ऑक्सीडेशन. एनोड पे जो रिएक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब यहाँ पे देखें एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इधर हमने मेंशन किया हुआ है. तो इन दोनों में से जो नेगेटिवली चार्ज आइन है दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आइन, इट मूव टूवर्ड्स द एनोड. और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑक्सीजन गैस, and the 4 electrons they are produced. So the removal, here we can see that in this reaction the electrons are being removed from these hydroxyl ions. So removal of electron is known as the oxidation reaction. So at anode oxidation reaction takes place. Now these electrons they move towards the cathode. अब हम लिखेंगे reaction at cathode. रिडक्शन. अब इस कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये जो पॉजिटिव आइन है इट मूव्स टूवर्ड्स दी कैथोड 4H पॉजिटिव, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे मूव टूवर्ड्स दी कैथोड. ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड होंगे एंड द 4 हाइड्रोजन एटम्स विल बी प्रोड्यूस. दीज 4 हाइड्रोजन एटम्स दे रीअरेंज देमसेल्व्स एंड दे प्रोड्यूस hydrogen gas. They combine to form and they produce the hydrogen gas. So at cathode hydrogen gas is produced. आप यहाँ डायग्राम में भी देखें कि हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड पे प्रोड्यूस हो रही है और एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. तो ओवरऑल रिएक्शन जो होगा दैट विल बी हम क्या कर रहे थे? वी आर गोइंग टू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड और अ सब्सटेंस इनटू इट्स components by passing an electric current. Here water is decomposed into its constituent or components by passing an electric current. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 water molecules, ये क्या बनाते हैं? H2 plus O2. सो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस जो है ये प्रोड्यूस होगी. इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन. सो इन दिस वे द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर इज़ बीइंग कैरिड आउट इन दिस सेल. और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी. और जब आपने ये डायग्राम बनानी है इसमें आप ये देखें जो ऑक्सीजन गैस है और यहाँ हाइड्रोजन, इसका जो ऑक्सीजन जो है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम शो किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन. आपने भी ऐसे ड्रॉ करना है. इसका रीज़न क्या है कि आप ये देखें वाटर इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसकी रेशो क्या होगी? 2:1. सो हाइड्रोजन जो है ये ज़्यादा है और एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीजन. सो दैट्स वाई जब आपने इसको बनाना है तो आपने हाइड्रोजन जो है उसको वॉल्यूम जो है ज़्यादा शो करना है और ऑक्सीजन जो है वो कम, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस दी वाटर. सो वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत दफ़ा ये बोर्ड में आ चुका है. इलेक्ट्रोलिसिस वैसे स्मार्ट सिलेबस में इसकी डेफिनेशन नहीं थी लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इंट्रोडक्शन में मैंने पहले इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन बताई, क्योंकि हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस है ब्रेक डाउन किसी भी सब्सटेंस को
उसके कंपोनेंट्स में जब ब्रेक डाउन किया जाता है या डिकम्पोज किया जाता है बाय पासिंग इन इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे कि प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि कम आइंस प्रोड्यूस करता है। सो वाटर इज़ डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सिल आइन, और इसमें इसकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा जो कंसनट्रेशन है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन की, दैट इज़ 10⁻⁻7 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, कभी ये MCQs में भी अक्सर आ जाती है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, वाटर विल बी डिकम्पोज इनटू इट्स रिस्पेक्टिव आइंस। द पॉजिटिवली चार्ज आइंस, दैट इज़ द हाइड्रोजन आइंस, दे मूव टूवर्ड्स द कैथोड। Hydroxyl ions, that is negatively charged, it moves towards the anode, and at the electrodes the discharge will take place, and the hydrogen and the oxygen gases are produced at anode, at cathode and anode respectively. The chemical reactions which will take place at these electrodes, these are written over here. आपने बताना है कि एनोड पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दैट्स वाई आई हैव रिटन ओवर हेयर ऑक्सीडेशन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जो कि हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोक्सिल आइंस जो है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन गैस। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स वर एक्सेप्टेड बाय दी हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हुए हैं जो कि मूव करेंगे टूवर्ड्स दी कैथोड। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी हाइड्रोजन आयन में, और दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाटर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। सो ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में जो है वाई वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आप बता सकते हैं कि वाटर इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट ionizes to small extent and produces less ions. And how the conductivity of the water is increased by adding few drops of acid in it. उसके बाद concentration कितनी होती है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस की, ये भी शॉर्ट में आ सकता है, MCQs में आ सकता है। उसके बाद लॉन्ग में जो है वो कंप्लीट आएगा। आपने इंट्रोडक्शन, देन प्रोसेस, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, 3 हेडिंग्स बनानी है। इंट्रोडक्शन, देन केमिकल इक्वेशन आ जाएगी, देन प्रोसेस, और उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है उस पर प्रोसेस लिखेंगे, और जो रिएक्शंस हैं उनसे ऊपर आप हेडिंग लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड दी कैथोड। रिएक्शन एट एनोड एंड रिएक्शन एट कैथोड ये आप लिखेंगे, और साथ आपने डायग्राम बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आपने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन में कंप्लीट लिखना है, और शॉर्ट में जैसे आंसर क्वेश्चन पूछा होगा वैसे ही इसको आपने आंसर करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोराइन एंड इट्स प्रिवेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द कोराइन। कोराइन इज़ द स्लो एंड कॉन्टीन्यूस ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। इट इज़ द स्लो एंड कॉन्टीन्यूस eating away of metal by surrounding medium. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कोराइन। मेटल्स जो हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, क्यों होती हैं, ड्यू टू दी सराउंडिंग मीडियम। उनके इर्द गिर्द जो भी एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारे रीजंस बनते हैं उस मेटल को डैमेज करने के। द डैमेजिंग ऑफ द मेटल, उसका ख़राब हो जाना जो वो क्या कहलाता है, कोराइन। इसलिए इसको हम कह रहे हैं इट इज़ अ स्लो, मतलब ये प्रोसेस जो है कॉन्टीन्यूसली, इफ़ इट प्रोसेस स्टार्ट्स इट कीप ऑन टेकिंग प्लेस अनटिल कि हम उसको खुद से मेटल को सेव कर लें, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। अदरवाइज़ अगर हम मेटल को पड़ा रहने देते हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है कि इट कीप ऑन डिकेइंग और इट कीप ऑन डैमेजिंग। ऑल्सो इट इज़ अ स्लो एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस अनटिल दी होल मेटल इज़ ईटन अवे, कि वो सारी की सारी जो मेटल जो है वो डिस्ट्रॉय, डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कोराइन। अब क्या है कि ये कैसा रिएक्शन होता है, इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। रिडॉक्स
रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स जो हमने पहले पढ़ा है कि ये इधर क्या हो, कौन से रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन डैमेजिंग दी मेटल। और जो कंडीशंस जो होती हैं क्या होती है कि इट टेक दिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। यानी कि हमें क्या चीज़ चाहिए, वाटर एंड ऑक्सीजन इन द एयर। यानी कि अगर नमी हो उस और एयर में ऑक्सीजन होती है, उसकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है ये होता है। और जितनी ही ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही ज़्यादा फास्टली ये प्रोसेस जो है ये कैरी ऑन होगा। सो व्हाट इज़ corrosion? It is the slow and the continuous eating away of the metal by the surrounding medium. It is a redox chemical reaction. और उसके बाद बताएंगे कि it takes place in the presence of the moisture and the oxygen present in the air. The common example is the rusting of the iron. अब हम इसमें पढ़ेंगे rusting of the iron कि how rusting of iron it takes place. अच्छा, corrosion इज़ द जनरल टर्म, यानी कि corrosion हम यूज़ करते हैं ओवरऑल ऑल मेटल्स के लिए, बट रस्टिंग इट इज़ अ टिपिकल टर्म और द वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर द corrosion ऑफ आयरन। आयरन की corrosion को या आयरन के डैमेज होने को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। जो उसके ऊपर डिपॉजिट होती है चीज़ रेडिश ब्राउन कलर की, उसको रस्ट कहते हैं। दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे, क्योंकि corrosion तमाम मेटल्स जो हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है। उस जो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग मीडियम का इफेक्ट होगा मेटल्स के ऊपर, उसको corrosion कहेंगे। लेकिन जो टिपिकल टर्म यूज़ की जाती है आयरन की डैमेज होने की, corrosion की, दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आप ये बताएंगे कि ये क्या होता है, इट इज़ दी ईटिंग अवे ऑफ द आयरन मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, कौन सी कंडीशंस चाहिए, मॉइस्ट एयर, ये लिख लें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। These are the two conditions which are necessary for the process of the rusting. अगर मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। और अगर मॉइस्चर है और ऑक्सीजन नहीं है, तो जब भी रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। सो दीज टू कंडीशंस दे आर नेसेसरी फॉर दी प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। सो आप जब इसको स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, तो आपने सबसे पहले हेडिंग लगानी रस्टिंग ऑफ आयरन, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ वन कंडीशन कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जब भी रस्टिंग नहीं होगी, या अगर मॉइस्चर नहीं है जब भी रस्टिंग नहीं होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिस्ट्री और द प्रोसेस इन डिटेल, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। ये नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपकी। नाउ कैसे स्टार्ट होता है, द साइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रस्टिंग इज़ दी स्टेन्स और द डेंट्स प्रेजेंट ऑन दी आयरन शीट और दी आयरन ऑब्जेक्ट। कोई भी आयरन की चीज़ है उसके ऊपर कोई भी स्टेन होगा या डेंट्स प्रेजेंट होंगे, कोई कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा या कोई दाग धब्बा होगा। दोज आर द साइट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग टू बी स्टार्टेड। अब इसमें आप लिखेंगे प्रोसेस ऑफ रस्टिंग जब स्टार्ट होता है तो कौन सी जगह है जो कि जगह प्रोवाइड करती है इस प्रोसेस को स्टार्ट होने की, स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन आयरन सरफेस। These are the places from where the process of the rusting it starts. Now इस रीजन को क्या कहते हैं, एनोडिक रीजन। क्या बोलते हैं, एनोडिक रीजन। यानी कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है रिडॉक्स रिएक्शन। एक सेल डेवलप हो जाएगा और वहाँ पे एनोड और कैथोड जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। वो रीजन जहाँ पे स्टेन्स या डेंट प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे एनोडिक रीजन। और यहाँ से क्या होगा कि जो आयरन का पीस है इट ब्रेकअप एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एंड दे मूव टूवर्ड्स दी सरफेस और दे स्प्रेड इन दी होल शीट। और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे मूव करेंगे इन द
area where there is more oxygen present. So anodic region is the place where the stains and the dents are present. तो एनोड पे रिएक्शन होगा, वहाँ पे थोड़ा सा जो जगह डैमेज हुई होगी वहाँ से आयरन मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वो मूव करेंगे टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन रिच एरिया विच बिहेव एज कैथोड. सो यहाँ पे हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन एट एनोड. यहाँ आप हेडिंग लगा लें. कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या रिएक्शन है? ब्रेकअप्स. और ये क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स. आयरन में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होंगे और ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल डैमेज द सरफेस ऑफ द आयरन. नाउ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आयरन शीट and reach the region where there is more oxygen or the concentration of the oxygen is more near this surface. और वो surface कौन सी होगी? जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये सरफेस यानी कि जो कि मीडियम यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो सरफेस की तरफ जाएगी. ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन रिच एरिया होगा जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगी और ये वहाँ पे जाके क्या करेंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स दे रिड्यूस दी ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ दी हाइड्रोजन आयन. तो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन होगा एंड दी अब क्या हम लिखेंगे कि कैथोड, ये तो एनोडिक रीजन हो गया. कैथोड जो होगा ऑक्सीजन रिच एरिया, ये क्या होगा? कैथोडिक रीजन. देन व्हाट हैपन हेयर? क्या होगा? रिएक्शन एट कैथोड हम लिखेंगे. रिएक्शन एट कैथोड. दीज इलेक्ट्रॉन्स ये जो यहाँ से रिलीज हुए हैं दे डैमेज दी आयरन शीट और आयरन ऑब्जेक्ट, दे मूव टूवर्ड्स दी एरिया विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन. उसको हम कैथोडिक रीजन कहेंगे. और रिएक्शन होगा कैथोड, दैट इज़ दी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? रिडक्शन. तो आप इस पर रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीजन प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा. और ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. सो दिस इज़ नोन एज रिडक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन. अब ये जो हाइड्रोजन आइंस हैं ये क्या कहाँ से आए हैं? दीज हाइड्रोजन आइंस, द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, ये भी आप मेंशन कर लें हेडिंग के साथ. कार्बोनिक एसिड इज दी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आइन. कार्बोनिक एसिड कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है और जो मॉइस्चर होता है दे रिएक्ट टुगेदर और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बोनिक एसिड. दिस इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड ब्रेकअप होके आइंस बनाता है प्लस CO3 2-. सो दिस इज द सोर्स ऑफ दी हाइड्रोजन आइंस. हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आए? कार्बोनिक एसिड से. सो ये 2 रिएक्शंस हो गए. अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? ये इन दोनों रिएक्शंस को हम प्लस कर लेंगे. ये जब पहले हमने पढ़ा था शुरू में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, उसमें आपको मैंने बताया था कि दोनों रिएक्शंस जो हैं ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को. दोनों रिएक्शंस को हम सम अप करेंगे और जो चीज़ कॉमन होती है एरो के बोथ साइड्स पे उसको हम कट कर देते हैं. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप कट करें और ये रिएक्शन आप लिख लें 2Fe प्लस O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस, 2Fe प्लस 2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. सो दिस रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन याद नहीं करने की ज़रूरत, आप ये वाली और ये वाली करें और इसको सम अप करके आपने ये रख देना है. इसको हम कहेंगे फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन. अब क्या होगा कि ये जो आयरन आइंस हैं ये जो यहाँ पे बन गए, ये क्या होगा? इट स्प्रेड्स द होल शीट. दिस शीट ऑफ आयरन, यहाँ पे क्या होगा कि पूरे ये आइंस जो हैं ये स्प्रेड हो जाएंगे और क्या होगा कि दे रिएक्ट्स विद दी इन द सराउंडिंग मीडियम. सराउंडिंग मीडियम यानी कि जो मॉइस्चर होगा एंड दे रिएक्ट विद दी ऑक्सीजन टू फॉर्म दी रस्ट. ठीक है. अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा के.
second redox reaction. So this is the second redox reaction. क्या होगा कि this is known as the rust. ये जो आयरन आइंस यहाँ पे प्रोड्यूस हुए इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वाटर एंड ऑक्सीजन. अब ये इस चीज़ को कंडीशंस देखें, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये आयरन आइन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हुए, यानी कि दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन आइंस प्रोड्यूस होंगे, ये स्प्रेड हो जाएंगे होल शीट में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द वाटर और द मॉइस्चर क्या करेंगे, ये दे फॉर्म अ सॉल्ट और ये क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड विद डॉट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज़ द रस्ट. अब ये क्या होगा, दिस इज़ द रस्ट लेयर इज़ पोरस. ये क्या होती है, पोरस इन नेचर होती है. सो इट स्प्रेड्स the whole sheet or it damages the whole sheet once this process is started. और अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो इट कीप ऑन टेकिंग प्लेस until the whole metal is eaten away or it is damaged or it will be broken down into small iron pieces और रस्टेड पीसीज होंगे जो कि रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि पूरी की पूरी मेटल जो है जितनी भी बड़ी हो, शीट हो या कोई चेयर हो या विंडो हो या गेट हो, कोई भी चीज़ जो आयरन की बनी होगी, अगर उसकी प्रोटेक्शन नहीं की जाए तो वंस द प्रोसेस इज स्टार्टेड इट कीप ऑन डैमेजिंग द मेटल अंटिल द होल मेटल इज़ डैमेज. सो ये जो रस्ट होता है इट इज़ वेरी डेंजरस वंस द प्रोसेस स्टार्टेड बिकॉज इट इज़ पोरस और ये जो है स्प्रेड हो जाता है. इट कीप ऑन डिकेइंग और डैमेजिंग द मेटल और अंटिल दी होल मेटल इज़ ईटन अवे. सो ये प्रोसेस जो है ये इसमें जब आएगा आपको शॉर्ट में आएगा व्हाट इज़ रस्टिंग, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है. ये भी आता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दी rusting of iron. It is the eaten away of the iron metal by the surrounding medium and the conditions necessary for this process is the presence of oxygen and water or the moisture. और इसके अलावा अगर ओवरऑल कोराइन आता है तो आप देंगे इट इज़ दी कॉन्टीन्यूस स्लो एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम. उसमें भी मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है और उसमें आप बताएंगे कि दैट इज़ द रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन. अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करेंगे तो उसमें आपने आयरन का बताना है. इट इज़ अ टिपिकल टर्म यूज्ड फॉर दी कोराइन ऑफ आयरन इज़ नोन एज द रस्टिंग ऑफ द आयरन. शॉर्ट में ये लिखेंगे और फिर ये भी आता है व्हाट इज़ रस्ट, तो आप बताएंगे रस्ट क्या होता है कि जो आयरन जो है ये सराउंड स्प्रेड हो जाते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं. द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट इज़ Fe2O3 एंड डॉट एंड वाटर मॉलिक्यूल. ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द रस्ट. ये MCQs में भी आ जाता है कि फार्मूला क्या है रस्ट का, इसको आपने याद करना है. ये व्हाट इज़ रस्ट, तो आप बताएंगे Fe2O3 डॉट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. ये क्या है रस्ट एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द आयरन आइन with oxygen in the presence of water rust is produced. It is reddish brown in color और क्या बताएंगे कि it is porous in nature. If it is not prevented then the process of the corrosion it is continued till the whole metal is eaten away. फिर अपने रस्टिंग ऑफ आयरन की डेफिनेशन लिखनी है शुरू में, फिर अपने प्रोसेस बताना है, उसमें एनोड का रीजन बताना है, फिर रिएक्शन एट एनोड, फिर कैथोड का रीजन बताना है, फिर रिएक्शन एट कैथोड. यहाँ पे क्या होती है कि ऑक्सीजन रिड्यूस होती है बाय द एडिशन ऑफ दी इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में. हाइड्रोजन आयन का सोर्स क्या है, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड कैसे कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है. कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है और वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन आइंस, और हाइड्रोजन आइंस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. फिर इन दोनों को सम अप करके आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे.
दिस इज़ नोन एज फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब जब ये आयरन आइंस प्रोड्यूस हो गए, ये पूरी शीट में स्प्रेड हो जाएंगे और क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दी वाटर, और ये क्या बनाएंगे, रस्ट बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, फेरिक ऑक्साइड डॉट एंड वाटर मॉलिक्यूल। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ये लॉन्ग में भी आता है और जो शॉर्ट में डेफिनेशंस भी आती हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। जब आप ये आएगा आपने इसी तरीके से हेडिंग्स बनाकर लिखना है। नोट्स में अगर आप इसको देखें तो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ हर पैराग्राफ, हर चीज़ को कि प्रोसेस क्या है, केमिस्ट्री प्रोसेस की पहले डेफिनेशन, फिर केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद एनोड, रिएक्शन एट एनोड, कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, फिर फर्स्ट रिडॉक्स रिएक्शन, सेकेंड रिडॉक्स रिएक्शन, फिर रस्ट, कंप्लीट हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है। आप वहाँ से कर लें या इसको बुक के ऊपर हेडिंग्स बना लें, वहाँ से देखें। सेम इज़ द केस विद दी जो हमने पहले टॉपिक किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो भी नोट्स में हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप वहाँ से कर लें या वहाँ से हेडिंग्स नोट करके बुक पे लिख लें। दोनों प्रोसेसेस, दोनों टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। पहले इसको समझें, इक्वेशन की प्रैक्टिस करें और फिर इसको याद करें और लिख के देखें तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।